ہمارے یہ دیکھیں، یہ ہے سید حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، جو ہم اوپر سے اس کی کوریج کر رہے ہیں۔ یہ زبردست قسم کی ڈیزائننگ کی گئی ہے، اور جتنے بھی یہاں پہ ترقیاتی کام گئے ہیں بہت زبردست قسم کا کیا گیا ہے۔ نقش و نگار جو کلرنگ جو کی ہے نا، وہ بہت زبردست ہے اور بہت اچھی طریقے سے طرز سے بنایا گیا ہے۔ بہت اعلیٰ طریقے سے نقش و نگار ہے۔ یہ دیکھیں، آئیے آئیے، یہ دیکھیں ناظرین، اجتماعات ہوتے ہیں، یہ زبردست قسم کی مسجد بنائی گئی ہے، بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اوپر سے آپ کو پورا ویو دکھا رہا ہوں۔ آئے ہوئے دو لوگ شجرہ شریف یہاں پہ لگایا گیا ہے۔ یہ آپ کا شجرہ شریف ہے۔ یہ دیکھیں، پانی کا میٹھے پانی کا بھی اہتمام ہے یہاں پہ، میٹھے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی ہم درگاہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور درگاہ شریف کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ درگاہ شریف کے اندر لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
شاہی میرے والد و امی بھائی بہنوں بیوی میری ہو سب کی آخرت پیاری ہو سب کی آخرت پیاری میرے عبداللہ شاہی کراچی آ گئے تم دین کی خاطر وطن چھوڑا کراچی آ گئے تم دین کی خاطر وطن چھوڑا بدل قسمت کراچی کی بدل قسمت ہماری تھی میرے عبداللہ شاہی بناؤ تم میری بگڑی میرے عبداللہ شاہی کرو نا یہ مہربانی میرے عبداللہ شاہی کھانا دیا جا رہا ہے بابا کی طرف سے بھی تبرکات بھی دی جا رہی ہے. یہ سائیں کا کرم ہے کہ سائیں نے ہمیں یہاں بلایا. چلیں آئیے آئیے یہ ذرا بابا کی نام کی طرف بناؤ ذرا. بہت زبردست قسم کا کام کیا گیا ہے ماشاءاللہ سے. کیا ہے بابا کے پاس؟ دیکھیے ہم تو کراچی ہم آتے رہتے ہیں ہر ہفتے اور لوگوں کی امید ہوتی ہے عبداللہ شاہ پہ ہر کسی کی اپنی اپنی مراد ہوتی ہے اور ہمارا اتنے سالوں سے یہ ہماری مراد ہوتی ہے اور ہماری قبول بھی ہوتی ہے اور ہمیں اتنا یقین بھی ہوتا ہے جو مراد ہم لے کے آتے ہیں ہم خالی نہیں جاتے. جب ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا ولی ہے عبادت گار بھی ہوتی ہے اور ہر پتہ نہیں پاکستان کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ بندے آتے ہیں اور ہر اپنی مراد جو لے کے آتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر جمعرات ہر عام دن میں اتنی رش ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لنگر بانٹتے ہیں اور چیز لوگ جو بانٹتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں ہر بندے کی مراد پوری ہوتی ہے. یہ اللہ کا ولی ہے. آپ کہاں سے آئیں؟ میں تو کراچی سے اوپر بیسیکلی میں لاڑکانہ سے ہوں اور کافی جو لوگ ہیں انٹیریئر سے بھی آتے رہتے ہیں ہر 15 دن ہر مہینے میں آتے ہیں اور پاکستان سے بندے آتے ہیں. تو لوگوں کے جو لوگ مرادیں لے کے آتے ہیں تو سائیں وہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. جی ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا ولی ہے. جیسے کلندر کبریا ہے بٹائی سرکار ہے عبداللہ شاہ کا بڑا رتبہ ہے. اگر ہسٹری میں جائیں گے تو اس کی یہ بڑی بات ہے. لوگوں کی ظاہر سی بات ہے مرادیں پوری ہوتی ہے تو تب لوگ دور دور سے آتے ہیں نا. ایسا کوئی کون جائے گا کسی کے پاس. باقی یقین کی بات ہے جو یقین دل میں ہوتا ہے
तो वो पूरा भी होता है इंशाल्लाह ताला। इसमें मैं आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए बात को कंटिन्यू करूंगा। आपके इलाके में एक डॉक्टर होता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है, ठीक है ना। अब हम किस डॉक्टर को फोकस देते हैं? जो सर्जन होता है, ताकि उसकी फीस भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब हम उस डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें पता होता है कि यार वो डॉक्टर जो हमसे फीस ज़्यादा ले रहा है वो हमारा अच्छा इलाज करेगा, ठीक है ना। ये हमारे बुजुर्गान दीन है ना, ये हमारे वो सर्जन है, इनको अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई है, या इन बुजुर्गों ने वो काम किए हैं जो ये अल्लाह के वलीउल्लाह हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो अल्लाह ताला उन्होंने जो मेहनत की है ना, उनके सिलसिले में जो यहाँ पे आवाम आती है उनके तमाम बिगड़े हुए काम बना देती है। क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको बात बताऊं, काफ़ी मैंने ये देखे हुए अपने रिश्तेदारों को, जो अपने दोस्तों में देखिए, जो इनको इतने सालों में औलाद नहीं होती थी, वो डॉक्टर के पास भी गए 5 साल 6 साल, पता नहीं कहाँ कहाँ तक उन्होंने फीसें भी अपनी ज़ाया कर दी, अपना 2-3 साल का इलाज भी चलाया, फिर भी उनका नहीं हुआ। अगर यहाँ पे एक बंदा अल्लाह के वली के पास अगर आता है यकीन रख के, तो उनकी औलादें भी हो जाती है, जो मर्ज़ होता है वो भी हो जाते हैं। मैंने काफ़ी देखे ना, वो भी बंदे अपनी लाइफ में देखा हुआ है, जिसको कैंसर की बीमारी थी, उन्होंने कहाँ पे लाहौर पे कराची में दिखाया था, उनको फ़ायदा नहीं हुआ था, उन्होंने यहाँ पे मुराद अपनी लेके आए थे, और काफ़ी लोगों को ठीक ठाक भी हो गए और रिकवर भी हो गए। ये यकीन की सारी बात होती है। बहुत शुक्रिया जनाब। आप कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से सही है, एक लड़ी चलते हुए आ रही है। जब अब्दुल्ला शाह गाजी जो है मक्का शरीफ से जब हिजरत करके कराची आए थे, यहाँ पे जब आए थे अपने मुरीदों को साथ लेके, इन्हें जो शहीद किया गया, इन्हें जब शहीद किया गया तो इनका दर्द जो है अलग किया। जब ये जो आप ये देख रहे हैं मज़ार, लोग कहते हैं कि पहले जो इनका आधा शरीर तो यहाँ वो किया गया था, फिर उसके बाद जो है उनका जो सर था वो मिला गया, फिर दोनों को फिर यहाँ दफन किया गया। इनके जो मुरीद थे उनका भी नीचे मकबरा है, सही है। और दूसरा, इनके जो मुरीद थे उनको जो है पानी की किल्लत थी यहाँ पे, तो ये पूरा खारा पानी था, पूरा समंदरी था एक। सुना है कि यहाँ पे जो है पूरा समंदर था, बाबा ने हुक्म दिया पानी को कि अल्लाह के पीछे चला जाए। तो ये बात कितनी? ये बहुत पुरानी है, और कहते जाते हैं गाजी बाबा के जो मुरीद थी ना, उनको पानी की कमी थी वज़ू के लिए और आखिरत के लिए। तो इस तरह गाजी बाबा ने अल्लाह ताला से सिफारिश की कि या अल्लाह मुझे मीठे पानी की वो। तो इस तरह इस तरह इतने तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो चश्मा है ना, ये गाजी बाबा के मुरीदों के लिए अल्लाह की वो नेमत है। ये चश्मा जब यहाँ पे आया हुआ है ना, तो इस तरह जो चश्मा जब हुआ है, तो फिर इनके जो मुरीद थे यहीं से वज़ू मज़ू अपना बना रहे थे, ये फिर इनकी शिफा बन गया। आप क्या मुराद लेके आए, क्या मन्नत लेके आए? मैं तो यहीं कराची को यहीं रहता हूँ, नीलम में, तो हम तो इनके मुरीद है, क्योंकि ये आले रसूल से, सही है ना। जैसे एक इंसान जब बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, सही है, और दूसरा वो जैसे आपके ऊपर कोई केस है तो आप हम बड़ा वकील करवाते, इस तरह हमारे ये वकील है, ये हम इनके पास अपनी दरख्वास्त लेके जाएंगे, ये अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे, तो हमारा केस इनके पास जाएगा। तो ये इनके पास हमारा केस गया है तो बड़े जज तो अल्लाह है, उनके बाद ये हमारे वकील है, ये हमारा केस लड़ेंगे, उसके बाद हमें जो भी हुआ हक में हुए तो हमें उसकी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैयदुल फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादे हैं, तो ज़ाहिर है इनके मकाम और दर्जात तो बहुत आला हैं, आला निस्बत के हैं, आला ख़ानदान से हैं, तो ज़ाहिर है इनका सानी तो कोई नहीं है। और ये सिलसिला जब तक ये दुनिया आबाद है हम लोग इससे मुस्तफ़ी होते रहेंगे। और हज़ारों लाखों ज़ायरीन जो यहाँ आते हैं अपनी मुरादें लेके, तो आपकी बारगाह में अपना इस्तिग़ासा पेश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और आपके शहज़ादे आले सादात के सदक़े में उनकी तमन्ना, तो यकीनन इनकी दुआओं से हमारी तमन्नाएँ आरज़ुएँ पूरी नहीं होंगी तो फिर किसकी होगी। ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि यहाँ जो भी आएंगे सबकी झोलियाँ भरते हैं। शहनशाह कराची हैं, आले सादात हैं, आप शहज़ादे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपका मकाम और दर्जात सबसे आला है, बेहतरीन है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम। और ये हमारे लिए अहले कराची के लिए बहुत बड़ी सादात है, शर्फ की बात है कि आप का रोज़े अक़दस यहाँ हैं और हम लोग यहाँ अपने मुरादें लेकर आते हैं, तमन्नाएँ लेकर आते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े में, इनके तोफ़ैल में
हमारी तमाम आरजुएं तमन्नाएं जो हमारे हक में बेहतर होती हैं वो पूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये था आज हमारा मुख्तसर सा सफ़र हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी दामन बरकातहू अलैह के मज़ार का, और जो अब यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, और अभी नीचे भी आपको लेके चलेंगे और नीचे की भी ज़ियारतें कराएंगे। बाबा जी का हमने जो है यहाँ पे अपना दीदार कर लिया, बाबा जी से जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब हम चलते हैं नीचे बुजुर्गादीन के पास, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी उनकी भी हम ज़ियारतें करते हैं। देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया? कितने? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहीं रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। ये देखें, हमारे ये बुजुर्ग हैं, खादिम हैं बाबा के, यहाँ खिदमत कर रहे हैं बाबा की ये, और बाकी खिदमत खादिमों की भी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें, काफ़ी इन्होंने परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे।